now in this we start with the next topic, that is your activation function. So we all know, right, activation function play a very important role in artificial neural network. So first of all, we will understand the process of calculating the output of the neural network. So now suppose we have a neural network like this. तो ये मेरा input node है. This is my input node x1, x2, x3, right, and so on dash 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 xn. So this is my input nodes, right? All the input nodes are in the input layer. So this layer is called as input layer. Okay. Then we have a output. तो आउटपुट के लिए y है, and then the interconnection between input and output is represented by weights w, w2, w3 and wn. So these are the weights. Okay. और जो input रहेगा, this is your x1, x2, x3, xn. The output is your y. Okay. अब now the first step, right, to the process to calculate the output of the neural network. तो हम लोग डायरेक्टली आउटपुट नहीं कैलकुलेट कर सकते, राइट? वी विल फर्स्ट कैलकुलेट द नेट इनपुट. हम लोग को नेट इनपुट कैलकुलेट करना पड़ेगा. दैट इज योर y in रहेगा वो. तो नाउ नेट इनपुट y in is calculated. अगर सपोज bias included है, that we also have a bias b. The first input, do remember students, the first input to the neural network is your bias, right? And it is an optional. The bias is an optional, right? Either you can include the bias in the neural network, right? Or we cannot include the bias in the neural network. And the input, this is a bias, the input of the bias is always 1. So therefore 1 into b, right, this will become b. तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे b plus summation of I equals to 1 to n xi wi. So now this is a formula to calculate the net input of the neural network, that is your y in. This is not the output of the neural network. Do remember student, this is not the output of the neural network. Y in is the total input received by the output node. तो उसके लिए फॉर्मूला है b plus summation of I equals to 1 to n xi wi. Now to calculate the output of the neural network, the output of the neural network is your y. To calculate this y, we apply the activation f. F is your activation on y in. y in के ऊपर activation अप्लाई करेंगे, तो this f is called as activation function. Activation function. तो now we start with the activation function. कि ये जो activation function है वो क्या है? पहली चीज, activation functions are used to calculate or to find out the output of the neural network. आउटपुट अगर मेरे को फाइंड आउट करना है कोई भी न्यूरल नेटवर्क का, तो f अप्लाई करना पड़ेगा ऑन नेट इनपुट के. तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एक्टिवेशन फंक्शन. तो फर्स्ट टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन, वी विल जस्ट टेक एन एग्जांपल. अ पर्सन इज परफॉर्मिंग सम वर्क. एक पर्सन है जो कुछ काम कर रहा है, सपोज, राइट, टू मेक द वर्क मोर एफिशिएंट, राइट. अगर मेरे को वो जो काम जो है पर्सन जो कर रहा है वो मोर एफिशिएंटली करे, राइट, एंड टू ऑब्टेन द एग्जैक्ट आउटपुट, राइट, जो हमको चाहिए. वो पर्सन को हम लोग ने किसके लिए अपॉइंट किया है? कुछ काम के लिए, कुछ टास्क करने के लिए, कुछ वर्क करने के लिए.
तो टू ऑब्टेन द एग्जैक्ट आउटपुट, जो टास्क के लिए हम लोग ने उसको असाइन किया है, वो एग्जैक्ट आउटपुट ऑब्टेन करने के लिए सम फोर्स और द एक्टिवेशन में भी गिवन, राइट। वो जो पर्सन है, राइट, उससे काम कराने के लिए, राइट, हम लोग को सम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। अपन जैसे बोलते हैं ना अपनी लैंग्वेज में, भाई उसके पीछे लगना पड़ेगा, भाई ये काम कर, ये काम कर, ये काम कर। वाई वी आर गिविंग अ इंस्ट्रक्शन लाइक दिस अगेन एंड अगेन, सो दैट जो आउटपुट है, जो एग्जैक्ट आउटपुट है, वो हमको मिले। तो इन द सेम वे द एक्टिवेशन फंक्शन हेल्प्स इन अचीविंग द एग्जैक्ट आउटपुट। अगर मेरे को मेरा आउटपुट चाहिए, टारगेट चाहिए, द एक्टिवेशन फंक्शंस आर यूज्ड टू अचीव दैट टारगेट। द एक्टिवेशन फंक्शन इज अप्लाइड, किसके ऊपर अप्लाई करेंगे? ओवर द नेट इनपुट। एक्टिवेशन इज अप्लाइड ऑन द नेट इनपुट, राइट। यानी ऐसा समझो कि जो y in है, राइट, वी विल अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस y in, और दैट एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड एज f, उसको f बोलते हैं, राइट। तो डू रिमेम्बर, तो एक्टिवेशन फंक्शंस के थ्रू ही, राइट, आउटपुट हम लोग को मिलेगा। तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्टिवेशन फंक्शन। अब नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिवेशन फंक्शंस आर देयर इन न्यूरल नेटवर्क। बहुत सारे टाइप्स के एक्टिवेशन फंक्शन हैं। तो वी विल फर्स्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्टिवेशन फंक्शन, आइडेंटिटी एक्टिवेशन। आइडेंटिटी एक्टिवेशन, तो इसमें क्या लिखा है? इट इज अ लीनियर फंक्शन। अच्छा, एक्टिवेशन फंक्शंस आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। एक्टिवेशन फंक्शंस जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक्टिवेशन फंक्शंस, राइट। देयर आर टू टाइप्स। पहला है वो लीनियर होगा, लीनियर एक्टिवेशन, और है नॉन लीनियर एक्टिवेशन। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन। तो आइडेंटिटी जो फंक्शन है, राइट, जो आइडेंटिटी फंक्शन है, इट इज वन ऑफ द लीनियर एक्टिवेशन। इट इज वन ऑफ द लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन। तो उसका जो फॉर्मूला है ये है, दिस इज द फॉर्मूला। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इन केस ऑफ आइडेंटिटी, देखो f इज एन एक्टिवेशन फंक्शन, वी अप्लाई दिस एक्टिवेशन फंक्शन ऑन y in, राइट। तो व्हाट हैपन इन दिस केस, व्हेन वी अप्लाई द एक्टिवेशन फंक्शन ऑन y in, वी विल गेट अगेन y in। वापस से हम लोग को क्या मिलेगा? y in ही मिलेगा। आर यू गेटिंग स्टूडेंट? अगेन वी विल गेट y in, मतलब द आउटपुट ऑफ द न्यूरल नेटवर्क y is same as y in after applying the activation function। तो इसके लिए इसका नाम रखा है identity activation। This is called as identity activation। Why? Because the input y in, जो total input है, it is same as the y, मतलब no changes। Whatever the answer of the y in is there, the same answer is right। वो जो y रहेगा उसका same आंसर रहेगा। और यहाँ पे क्या लिया है? y in की जगह x लिया है, दैट्स इट। सिंस यहाँ पे x लिया है, इसके लिए आउटपुट में x आया। मैंने यहाँ पे y in लिया था, तो मेरे आउटपुट में क्या आ रहा है? y in। तो इन दिस केस याद रखो, द इनपुट एंड द नेट इनपुट एंड द आउटपुट रिमेन्स द सेम, नो चेंजेस, कुछ भी चेंज नहीं होगा आफ्टर अप्लाइंग द एक्टिवेशन फंक्शन। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ एक्टिवेशन। नाउ सेकेंड इज योर बाइनरी एक्टिवेशन फंक्शन। यहाँ पे लिखा है इन आइडेंटिटी एक्टिवेशन द आउटपुट हियर रिमेन्स द सेम एज इन, नो चेंजेस। अच्छा, इन केस ऑफ बाइनरी स्टेप एक्टिवेशन, राइट, तो एकदम आसान है यहाँ पे भी। व्हेन वी अप्लाई द बाइनरी एक्टिवेशन, राइट, यानी सपोज f अप्लाई करेंगे हम लोग ऑन y in, तो इससे आउटपुट क्या मिलेगा मेरे को? y। तो इसमें क्या आएगा? द वैल्यू ऑफ y जो है वो बाइनरी एक्टिवेशन, बाइनरी मतलब आइदर 1 होगा या 0 होगा, राइट। आइदर द आउटपुट इज 1 और 0। अब 1 कब होगा? तो व्हेन द y in इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और y in इज लेस देन 0।
अगर y in ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है तो आंसर इज 1, और y in अगर लेस देन 0 है तो आंसर क्या आएगा इसका 0। अच्छा, व्हाट इज दिस 0? व्हाट दिस 0 इंडिकेट्स हियर, ये 0 का मीनिंग क्या है? दिस 0 इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड। देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का जो रिप्रेजेंटेशन है वेरिएबल वो है थीटा। थीटा कहीं पे भी आ रहा है इन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, राइट, वी कॉल इट थ्रेशोल्ड। उसको हम लोग थ्रेशोल्ड बोलते हैं। जैसे y in नेट इनपुट है तो थीटा क्या है? थ्रेशोल्ड। तो थ्रेशोल्ड याद रखो, न्यूरल नेटवर्क में थ्रेशोल्ड का कंसेप्ट यूज होता है। थ्रेशोल्ड मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम रीच बोलेंगे अपन, मैक्सिमम रीच। जैसे एग्जांपल देखो, एवरीवेयर देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड, राइट। जैसे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पीड ऑफ द बाइक और कार, स्पीड ऑफ कार, राइट। अब देखो कार की जो स्पीड है इट हैज अ थ्रेशोल्ड ना, मतलब मैक्सिमम कितना तुम इंक्रीज करोगे? 120, 130, 180, 200, मैक्सिमम कहीं ना कहीं जाके तो एंड होगा, राइट। उससे ज़्यादा कार की स्पीड को बढ़ाना पॉसिबल नहीं है, राइट। जैसे एग्जांपल फैन है, राइट, फैन की स्पीड है सेम, देयर इज ए थ्रेशोल्ड। इसके आगे उससे ज़्यादा थ्रेशोल्ड से ज़्यादा उसको डिफाइन मतलब इंक्रीज करना पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे एवरीवेयर, नॉट इन द कार और बाइक और दिस थिंग, एवरीवेयर देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड, मैक्सिमम रीच। उसके ज़्यादा उससे ज़्यादा यानी अचीव करना पॉसिबल नहीं होगा। इन द सेम वे यहाँ पे भी कंसेप्ट है थ्रेशोल्ड, यानी ये जो न्यूरल नेटवर्क है वो मैक्सिमम कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, राइट। तो थ्रेशोल्ड के ऊपर डिपेंड है। अगर थ्रेशोल्ड ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन बोलते हैं ना y in है, y in अगर ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड है, तो ये केस में हमने 0 लिया है थ्रेशोल्ड ना, y in अगर ग्रेटर देन 0 मतलब थ्रेशोल्ड है, आउटपुट ऑफ द न्यूरल नेटवर्क इज 1, और थ्रेशोल्ड से अगर कम है तो आउटपुट विल बी 0। तो दिस इज कॉल्ड एज बाइनरी स्टेप एक्टिवेशन। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ एक्टिवेशन is your binary step activation. Now we start with the third, bipolar step activation. So what happen in case of bipolar? देखो, binary and bipolar both are same. In case of binary the answer is either 0 or 1, but in case of bipolar inputs or output the answer is 1 or -1. तो यहाँ पे थोड़ा रेंज ज़्यादा है, राइट। वही अगेन when the y in, देखो यहाँ पे x लिया है, बट इन आर केस इट विल बी अ y in, ये y in रहेगा। तो व्हेन y in इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू थीटा, मतलब सम थ्रेशोल्ड वैल्यू, द आउटपुट विल बी 1, एंड व्हेन y in इज लेस देन थीटा, दैट इज योर थ्रेशोल्ड वैल्यू, द आंसर इन दिस केस इज योर -1। तो अगर y in ग्रेटर देन थीटा है इन केस ऑफ बाइनरी और बाइपोलर, द आउटपुट रिमेन सेम, 1 और 1 दोनों में 1 रहेगा, बट व्हेन इट इज लेस देन थ्रेशोल्ड तो आंसर विल बी चेंज। इन केस ऑफ बाइनरी 0, इन केस ऑफ बाइपोलर -1। तो दीज आर दी टू एक्टिवेशन फंक्शंस है, राइट, दैट विल बी यूज इन द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो बाइनरी स्टेप, बाइपोलर स्टेप। नाउ थर्ड एक्टिवेशन फंक्शन इज योर सिग्मोइडल और सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन। तो इन केस ऑफ सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन अगेन देयर आर टू टाइप्स, बाइनरी सिग्मोइड एक्टिवेशन और bipolar sigmoid activation. We have a binary sigmoidal activation and bipolar sigmoid activation. तो mostly याद रखना the sigmoidal activation function is used in back propagation network. So this will come later on, right? We have a different types of networks, right? So one of the network, neural network is your back propagation network. The back propagation network का जो आउटपुट आता है it is using sigmoidal activation function. तो in this case याद रखो sigmoidal activation function में 2 टाइप है, binary sigmoidal activation, ये फॉर्मूला है उसका, राइट। देखो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, राइट। आई विल सिंप्लीफाई दिस फॉर्मूला टू गेट द आउटपुट ऑफ द न्यूरल नेटवर्क यूजिंग सिग्मोइड, f लिख देता हूँ सिग्मोइड, तो समझ में आएगा अपने को कि
दिस इज अ सिग्मोइडल एक्टिवेशन फंक्शन, वी अप्लाई द सिग्मोइडल एक्टिवेशन फंक्शन ऑन वाई इन, और उसका जो आउटपुट आएगा इट इज़ योर 1/1 प्लस ई रेज टू माइनस वाई। तो दिस इज योर सिग्मोइडल, लेकिन बाइनरी, हाँ, बाइनरी सिग्मोइडल एक्टिवेशन। इन द सेम वे वी हैव अ बाइपोलर सिग्मोइडल एक्टिवेशन, इट इज योर वाई, अगेन वी अप्लाई एक्टिवेशन, सिग्मोइड एक्टिवेशन। अब जो सिग्मोइड रहेगा दिस इज फॉर बाइपोलर, ये बाइपोलर के लिए रहेगा, अप्लाई करेंगे वाई इन के ऊपर। नाउ द आउटपुट इज 2/1 प्लस ई रेज टू माइनस वाई इन minus 1. So these are the two activation, binary sigmoid activation and the bipolar sigmoid activation. तो ये दोनों एक्टिवेशन है। अच्छा, सपोज मैंने यहाँ पे 1 लिख लिया नीचे डिनोमिनेटर में, आई एम राइटिंग अ 1। नाउ वी विल डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट, हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो व्हाट हैपन, राइट, जो y आएगा ये केस में तो क्या था 2/1 प्लस ई रेज टू माइनस y in minus 1. So now put 1 in the denominator and cross multiply. So 2 minus within bracket 1 plus e raised to minus y cross multiply करना, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, एंड 2 नीचे जो रहेगा 1 प्लस ई रेज टू माइनस वाई। देन माइनस से साइन चेंज करेंगे, 2 माइनस माइनस ई रेज टू माइनस वाई अपॉन 1 प्लस ई रेज टू माइनस वाई। So 2 minus 1 will become 1 minus e raised to minus y upon 1 plus e raised to minus y. तो this is also a sigmoidal activation function का फॉर्मूला, आइदर ये यूज़ करो या ये यूज़ करो, मीनिंग सेम है। 2/1 प्लस ई रेज टू माइनस वाई इन माइनस 1, ये भी सही है, और y इक्वल्स टू 1 माइनस ई रेज टू माइनस वाई इन अपॉन 1 प्लस ई रेज टू माइनस वाई इन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो दिस आर दी टू से, यानी बाइपोलर में याद रखो दोनों लिख सकते हो। एज वी कैन सी है, ये भी है द सेम फॉर्मूला, 1/1 प्लस ई रेज टू माइनस वाई इन इज फॉर बाइनरी, एंड फॉर बाइपोलर 2/1 प्लस ई रेज टू माइनस वाई इन माइनस 1 या 1 माइनस ई रेज टू माइनस वाई। अच्छा, यहाँ पे देखो देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ लैम्डा, तो दैट इज कॉल्ड एज लैम्डा इज द बोलते ना स्टेपनेस, वो देखेंगे अपन, स्टेपनेस पैरामीटर इज देयर, तो वी कैन यूज दिस लैम्डा ऑल्सो, बट इट इज एन ऑप्शनल, राइट। बाय डिफॉल्ट वी कैन पुट द लैम्डा एज 1, डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द लैम्डा। अगर इफ इट इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम वी टेक इट इज एज 1। तो इन केस ऑफ बाइपोलर, राइट, द आंसर इज बिटवीन -1 एंड +1। इन केस ऑफ बाइनरी सिग्मोइडल द आंसर इज बिटवीन 0 एंड 1। तो देखो बाइनरी में, बाइनरी एक्टिवेशन में डू रिमेंबर, इन केस ऑफ बाइनरी एक्टिवेशन आंसर जो रहेगा वो आइदर 0 और 1 रहेगा। इन केस ऑफ बाइनरी एक्टिवेशन, इन केस ऑफ बाइनरी सिग्मोइडल एक्टिवेशन आंसर इज बिटवीन 0 एंड 1। ये दोनों में डिफरेंस है। बाइनरी एक्टिवेशन में आइदर और, यानी ये रहेगा या फिर ये रहेगा, बीच में कोई वैल्यू अलाउड नहीं है, बट बाइनरी सिग्मोइडल एक्टिवेशन में आंसर इज बिटवीन 0 एंड 1। सेम इन केस ऑफ बाइपोलर, आंसर इज बाइपोलर एक्टिवेशन आंसर इज आइदर 0 और 1 और -1, बट इन केस ऑफ बाइपोलर सिग्मोइडल एक्टिवेशन द आंसर इज बिटवीन 1 एंड -1. So these are the two activation functions, right, that are used in the artificial neural network. Now next जो activation है after the sigmoidal activation, right, there is a ramp activation. The fifth one is your ramp activation. Again this is the formula of ramp activation. तो इसमें there are three probabilities. Either 1 होगा, 0 होगा या x. अब देखो वही again in our case x is your y ना, x जो रहेगा वो y in रहेगा। To calculate the f अप्लाई करेंगे on y in. तो in case of RAM what is the output? Either 1 होगा या y in होगा, x की जगह अपन y in लिखेंगे and 0 रहेगा, राइट। तो अब वो 1 कब रहेगा? when y in is greater than 1। तो in this case थ्रेशोल्ड 1 है, थीटा जो है वो 1 है,
तो इफ x इज ग्रेटर देन 1 यानी थ्रेशोल्ड से ग्रेटर है तो आंसर विल बी 1. अगर बिटवीन 0 एंड 1 है, दिख रहा है, इफ x इज बिटवीन 0 एंड 1 आंसर इज x, y इन आ जाएगा. और अगर वो लेस देन है, नेगेटिव है, तो 0 आएगा. यानी अगर ग्रेटर देन है तो 1 आएगा, राइट. अगर बिटवीन है तो दैट इज योर y इन, वही x आ जाएगा. और अगर लेस देन है तो 0 आ जाएगा. तो दिस आर दी 3 कंडीशंस यूज इन द रैम्प एक्टिवेशन फंक्शन. तो दिस इज ऑल अबाउट द activation functions in neural network. Now we will start with this solve example. We will solve this example, obtain the output, right, of output of the neuron y. So this is my neuron output, neuron y. For the network using this is a diagram of the neural network using activation function, binary, sigmoidal and bipolar sigmoidal activation. So now before calculating the output of the neural network, we will first calculate the net input. हम लोग net input calculate करेंगे. So let us start with the example. So first we will see what are the things that are given. कौन सी चीज़ें given है. So what are the things that are given? So now first of all x1, x2, x3. So these are the given information. 0.8, 0.6 and the 0.4. So these are the inputs. x1, x2, x3. Now the next thing that is given, w1, w2, w3, that are weights interconnection. 0.1, 0.3 minus 0.2, 0.1, 0.3 minus 0.2. So these are the weights. And then bias is also given b, that is your 0.35. This is my bias, 0.35. So now these are the given information given in the question. Now formula, we will see the formula. So now the first formula, right, that we use is your y in, net input. We will first calculate the net input. Since there are 3 neurons, so b plus x1 w1 plus x2 w2 plus x3 w3, right. So this is this part, right. This part we can write like this: summation of I equals to 1 से 3 xi wi. So when we expand this I equals to 1 to 3 xi wi, we get x1 w1 plus x2 w2 plus x3 w3. Then उसके बाद we will calculate y, right. In this case we have 2 outputs, binary and bipolar. So I am writing here binary sigmoidal, BS, binary sigmoidal, ठीक है. So we the formula to calculate this, 1 upon 1 plus e raised to minus y in, and then the we can call it y, y1. Instead of writing bs, we will write this as y1. This is my first output. Now y2 is a bipolar, so we write 1 minus e raised to minus y in upon 1 plus e raised to minus y in. So these are the formula that we use in this example. Now solution start करेंगे. We will start with the solution. To calculate the net input, first we calculate the net input y in, right. So the formula is b. So what is b? 0.35 plus x1. What is x1? 0.8 multiply with w1 0.1 plus then the x2 0.6 0.3 plus 0.4 and then minus 0.2, right. So now we multiply these answers, 0.35,
0.8 is multiplied with this, so 0.08. This will become 0.18 and minus 0.4 to the 8. Right, 4 to the 8. It will become 0.08. So in this case, right, 0.4 multiplied with minus 0.8. So plus 0.08 minus 0.08. Right, it will cancel. So now y in will become y in equals to 0.35 and the previous 0.35 and 0.18 plus 0.18. So this will become 3, 5 plus 8 3, 5 plus 8 13, carry 1 plus 1 2, 2 plus 3 5. This will become 0. So y in is your 0.53. Now this is my net input. Now we will calculate y1. The formula is 1 upon 1 plus e raised to minus y in. So 1 upon 1 plus e raised to minus 0.53. So now यहाँ पे this part, right, this part will be calculated, right, in calci. राइट, इसको हम लोग को कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि वी आर नॉट एबल टू राइट द आंसर ऑफ दिस ना डायरेक्टली, राइट, वी हैव टू यूज द कैलकुलेटर. तो जो भी आंसर आएगा, वॉट एवर द आंसर इज ऑफ 0 e raised to minus 0.53, we add 1 plus the answer of this and divide 1 upon that answer. तो उसका जो the answer of the final answer of this is your, उसका जो फाइनल आंसर आएगा वो जो रहेगा 0.625. ठीक है, आई एम राइटिंग 0.625. इन द सेम वे वी कैलकुलेट y2, दैट इज योर 1 minus e raised to minus y in upon 1 plus e raised to minus y in. 1 minus e raised to minus 0.53 upon 1 plus e raised to minus 0.53. अगेन ये दोनों कैलकुलेटर से आ जाएगा आंसर. नाउ अगेन द एंटायर एक्सप्रेशन इज इवेलुएटेड, राइट, पूरी एक्सप्रेशन इवेलुएट होगी. द आंसर इज 0.259. द आउटपुट इज 0.259. So this is the output of the bipolar sigmoidal activation. This is the output of the binary sigmoidal activation. I hope you understood.